السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے بڑی ہی ایک کمال کی ویڈیو لے کر آئے ہیں، اور یہ ویڈیو ہے ایک انڈیا کی اداکارہ ہے، نام اس کا پتہ نہیں، راکھی اس نے یہ جملے کہے ہیں کہ اب یہ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، تو اس رمضان المبارک کے مہینے کے اندر میں سارے روزے رکھوں گی اور ایک اللہ کو راضی کروں گی۔ تو ناظرین، آئیے ہم وہ اس عورت کی ویڈیو دیکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ہم آپ کو ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ کی بھی گفتگو سناتے ہیں، پھر انشاءاللہ اسی حوالہ سے ہم بھی تفصیلی بات کریں گے۔ تو چلیں ناظرین، مل کے ویڈیو ملاحظہ فرمائیں۔ اٹھنا چاہتی ہوں رمضان کے مبارک پوتر مہینے میں روزے رکھنا چاہتی ہوں۔ میرا رشتہ اللہ سے ہے، خدا سے ہے۔ میں پرارتھنا کرنا چاہتی ہوں، میں نماز پڑھتی ہوں، 5 ٹائم نماز، اور میں پریئر کرتی ہوں۔ ابھی رمضان آنے والا ہے، دیکھیے مجھے خوش رہنا ہے۔ میرے جو آنکھوں سے آنسو ہے نا، وہ صرف اور صرف اللہ کے سامنے، خدا کے سامنے، جیزس کے سامنے ہی بہیں گے۔ اب میرا پیار ایک ہی ہے، وہ ہے خدا۔ ان سے میں سچا پیار کروں گی تو شاید میرے جیون میں آگے بہت کچھ اچھا ہوگا۔ پورا 1 مہینہ مجھے ایسے روزے اسٹرکٹلی رکھنے ہیں، خدا کے پاس آنا ہے، کیونکہ آپ کو ابھی تک پتہ نہیں، یعقوب نبی، اگر آپ جانیں ان کی سٹوری، 40 سال وہ اپنے بیٹے کے لیے، یوسف نبی کے لیے تڑپے تھے، کیونکہ کہیں نہ کہیں ان کا پیار اپنے بیٹے کی طرف زیادہ تھے۔ تو اللہ نے کہا سب سے پہلے میں تمہارا پیار ہوں، میری طرف رہو۔ تو 40 سال انہوں نے خدا نے، پرمیشور نے، اللہ نے یوسف نبی سے ان کو دور رکھا تھا، ملنے نہیں دیا۔ لیکن جب وہ ایک دم خدا کے پاس آئے، ایک دم پریئر کرنے لگے، اے خدا، اے میرے پروردگارا، جو تو چاہتا ہے وہی ہو، وہ ایک دم پیارا ہے، تو پھر باپ بیٹے مل گئے۔ تو ویسے ہی میں خدا کو اپنا پہلا پیار بناتی ہوں، تو شاید میری زندگی میں سب کچھ اچھا ہو جائے، اور خدا ہی میرا پہلا پیار ہے۔ اور آخری اب ہم تذکرہ کریں گے 4تھے رکن کا، وہ ہے صوم، روزہ۔ ہر بالغ مسلمان کے لیے فرض ہے، جس کی صحت اچھی ہے، کہ وہ روزہ رکھے رمضان کے مہینے میں، اور پینے اور کھانے سے پرہیز کرے، فجر سے لے کر مغرب تک وہ پرہیز کرے کھانے اور پینے سے، رمضان کے مہینے میں فرض ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ میں، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 183 میں، 183، روزہ ہم نے آپ کے اوپر فرض قرار کیا ہے، جیسے پہلے لوگوں پر فرض قرار کیا تھا، تاکہ آپ پرہیزگار بنو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ فرض قرار کیا گیا تاکہ آپ پرہیزگار بنو۔ اور آج کے سائیکولوجسٹ کہتے ہیں، اگر کوئی بھی انسان اگر بھوک پہ قابو پا سکتا ہے تو وہ اپنے سارے خواہشات پر قابو پا سکتا ہے۔ If you can control your hunger, you can control almost all your desires۔ اور روزے رکھنے کی کئی فائدے ہیں۔ آج سائنس کہتی ہے اگر روزہ رکھے 1 مہینے تک، جس طریقے سے مسلمان رکھتے ہیں، آپ کا انٹسٹینل ایبزارپشن بڑھ جاتا ہے، آپ کا کولیسٹرول لیول گھٹ جاتا ہے، کئی بری عادتیں جو انسان کے پاس ہے وہ نکل جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ، اگر آپ سگریٹ پینے سے پرہیز کر سکتے ہیں فجر سے مغرب تک، تو انشاءاللہ یو کین پریونٹ فرام کریڈل ٹو گریو، آپ پیدائش سے موت تک کے سگریٹ سے پرہیز کر سکتے۔ اگر آپ شراب پینے سے پرہیز کر سکتے فجر سے مغرب تک، تو انشاءاللہ آپ پیدائش سے موت تک شراب سے پرہیز کر سکتے۔ یہ ایک موقع ہے غلط عادتوں سے چھٹکارا پانے کا، اور کئی فائدے اس کے میں تقریر کیا ہوں اس کے اوپر۔ لیکن روزے کے بارے میں ذکر بائبل میں بھی آتا ہے، گاسپل آف میتھیو میں، چیپٹر نمبر 17 ورس نمبر 21 میں، اور گاسپل آف مارک چیپٹر نمبر 9 ورس نمبر 29 میں، کہ روزہ رکھو۔
सर माय क्वेश्चन इज मैं 27वां रोजा करता हूँ सर, और हिंदू धर्म से बिलोंग्स करता हूँ, क्या ये गुनाह है सर? बस आपका सवाल अगर मैं सही समझा कि आप 27वां रोजा रखते हैं या सर, तो क्या गुनाह करते हैं? क्या सर, वही जानना था सर। अगर आप के पास ईमान नहीं है, आप नहीं मानते कि खुदा एक है, और नहीं मानते कि खुदा के अलावा कोई माबूद नहीं, और नहीं मानते कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर है, अगर आप रोजा रखे तो ये फाकी के बराबर है। नहीं सर, मैं तो मानता हूँ कि भगवान एक अगर ही आप है। मानते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, अगर ईमान है और फिर रोजा रखे तो अच्छी बात है, और अगर मुकम्मल ईमान लेके इस्लाम में दाखिल होते तो मेरी दरख्वास्त है कि कोशिश करो कि पूरा महीना रोजा रखे। ओके सर, आई विल डू सर। इंशाल्लाह। आप मानते कि खुदा एक है? यस सर। आप मानते कि खुदा के अलावा कोई माबूद नहीं? नहीं सर, मैं तो मानता हूँ कि भगवान एक ही है, चाहे वो खुदा हो, भगवान हो, कोई भी। आप मानते हैं कि बुत परस्ती, मूर्ति पूजा गलत है? नहीं सर, ये बात नहीं मानता हूँ सर। आप मानते हैं मूर्ति पूजा गलत है या सही है? सर सही है मेरे हिसाब से। आप मानते हैं मूर्ति पूजा सही है? यस सर। तो अगर आप मूर्ति पूजा सही है मानते हैं, इस्लाम में मूर्ति पूजा करना गलत है, इस्लाम में गलत है, हिंदुइज्म में गलत है, ईसाईयत में गलत है। अगर आप मूर्ति पूजा मानते, रोजा रखे तो कोई फायदा नहीं, ये फाकी के बराबर है। आप समझे ना? जब तक आप ये नहीं माने, क्योंकि लिखा है श्वेता उपनिषद में चैप्टर नंबर 4 श्लोक नंबर 19, और लिखा है यजुर्वेद में चैप्टर नंबर 32 श्लोका नंबर 3 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस भगवान, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्ष नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं। तो अगर स्टैच्यू नहीं है, मूर्ति भगवान की नहीं है, और आप मूर्ति पूजा कर रहे, मतलब भगवान के अलावा किसी और की पूजा करें तो गलत है, ये गुनाह है। तो आप स्वर्ग में कभी भी नहीं जाएंगे, जन्नत में कभी भी नहीं जाएंगे, चाहे आप अपने आप को मुसलमान भी बोलो, कोई फायदा नहीं। जब तक आप ये नहीं माने मूर्ति पूजा गलत है, आपको मुस्लिम बोल के कोई फायदा नहीं। नहीं सर, मैं तो दिल से मानता हूँ ना सर। नहीं, दिल से मानते कि मूर्ति पूजा गलत है कि सही है? सही है सर। तो सही है तो कोई फायदा नहीं। आप अपने आप को मुस्लिम बोलेंगे और शहादत देंगे तो भी कोई फायदा नहीं। आप और तहकीक करो और किताबें पढ़ो, जब आपको यकीन हो जाएगा कि मूर्ति पूजा गलत है, फिर ही आप अपने आप को इस्लाम में दाखिल करो, नहीं तो कोई फायदा नहीं। जब तक आप मूर्ति पूजा जिंदगी से नहीं निकालेंगे, कुरान में लिखे सूरह निसा सूरह 4 आयत नंबर 48 और सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 116 में कि अल्लाह ताला भगवान ईश्वर कोई भी गुनाह को माफ कर सकता है, लेकिन शिर्क, मूर्ति पूजा को कभी माफ नहीं कर सकता है। तो ये जब तक आपकी जिंदगी में कोई फायदा नहीं, रोजा रख के कोई फायदा नहीं, नमाज पढ़ के भी। ज़कात इसलिए है ताकि ये दौलत सिर्फ अमीरों के बीच न घूमे, so that the wealth does not circulate only amongst the rich. ज़कात देना हर इंसान जो बालिग है और जिसके पास निसाब से ज्यादा बचत है, 85 ग्राम सोना से ज्यादा, उसके लिए फर्ज है कि वो हर कमरी साल 2.5% खैरात में दे, ये फर्ज है। और इसका जिक्र बाइबल में भी है। बाइबल में लिखा है 1 पीटर में चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 8 में, गिव फर्वेंट चैरिटी, फॉर चैरिटी कवर्स अप मल्टीट्यूड्स ऑफ सिन। आप खैरात करो क्योंकि खैरात आपके गुनाहों को धोता है। 5वां रुकन इस्लाम का है हज। हर बालिग इंसान जो हैसियत रखता है उसे हज कम से कम जिंदगी में एक बार करना चाहिए। मक्का जाना चाहिए हज के महीने में कम से कम एक बार। और ये सबसे बेहतरीन मिसाल है इंटरनेशनल ब्रदरहुड की, आलमी भाईचारे की। तकरीबन 25 लाख लोग हर साल आते हैं हज के लिए मक्का अरफात, दिगर ममालिक से, अमेरिका से, इंग्लैंड से, इंडिया से, पाकिस्तान से, इंडोनेशिया से, मलेशिया से। और मर्द जो सफेद कपड़े पहनते हैं बिना सिले हुए, आप ये भी नहीं पहचान सकते आपके बाजू में जो आदमी खड़ा है वो राजा है कि फकीर है। सबसे बेहतरीन मिसाल आलमी भाईचारे की। और अल्लाह ताला फरमाते हैं
सूरह हुजुरात में, सूरह नंबर 49 आयत नंबर 13 में, या अय्युहन नासु इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुअबन व क़बाइला लितारफू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाहा अलीमुन खबीर। ए इंसान, हमने तुम्हें बनाया है एक जोड़े से, मर्द और औरत के, और बांटा है कबीलों में, बरादरियों में, ताकि आप एक दूसरों को पहचान सके, ना कि आप एक दूसरे से नफरत करें। और सबसे बेहतरीन वो है जो तकवा रखता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को इंसान को जांचने के लिए सबसे बेहतरीन जिससे इंसान ऊंचा हो सकता है वो है तकवा, वो है नेकी। नहीं तो सारे इंसान बराबर हैं, चाहे काले हो या पीले हो या सफेद हो, गरीब हो या अमीर हो, राजा या फकीर। एक इंसान दूसरे इंसान से सिर्फ नेकी के जरिए ऊंचा हो सकता है। और हज का जिक्र बाइबल में भी है। बाइबल में लिखा है बुक ऑफ साम्स में चैप्टर नंबर 84 वर्स 4, 5, 6, 7, इसमें लिखा है ब्लेसेड आर दोज पीपल दैट ट्रैवल टू द वैली ऑफ बेक्का। सलामती है उन लोगों पर जो लोग मक्का की वादी में जाते हैं। मक्का एक दूसरा नाम है मक्का के लिए, जिसका जिक्र कुरान में भी है, सूरह अल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 96 में। तो मक्का जाने का जिक्र बाइबल में भी है। ये था मुख्तसरन तौर पर इस्लाम के 5 अरकानों और ईसाईयत के दरमियान यकसानियत। ये 5 अरकान सिर्फ अरकान है, इसको अगर आप मजबूती से अमल करें इंशाअल्लाह ढांचा इमारत भी अच्छी रहेगी। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह धारियात में सूरह नंबर 51 आयत नंबर 56 में, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने जिन और इंसान को बनाया है सिर्फ अल्लाह की इबादत के लिए। जी नाज़रीन, आपने ये वीडियो मुलाज़ा फरमाई, तो आइए हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के कुरान की तरफ बढ़ते हैं। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। अल्लाह रब्बुल आलमीन का कुरान कह रहा है कि ऐ ईमान वालो, तुम्हारे ऊपर रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए जैसा कि पहली कौमों पर फ़र्ज़ कर दिए गए थे, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि आप मुत्तकी बन जाओ। तो नाज़रीन, आइए पहली कौमों के ऊपर रोज़े फ़र्ज़ किए गए, तो हम नबी दाऊद अलैहिस्सलाम की तरफ बढ़ते हैं। तो उनके ऊपर रोज़े कैसे फ़र्ज़ थे? वो एक दिन रोज़ा रखते थे और एक दिन छोड़ते थे। यानी पता ये चलता है इस आयत से कि पहली कौमों के ऊपर भी रोज़े फ़र्ज़ थे। तो ये रमज़ानुल मुबारक का जो महीना है नाज़रीन, ये अल्लाह की रहमत का महीना है, अल्लाह की बरकतों का महीना है। बल्कि जब ये रमज़ानुल मुबारक का महीना आ जाता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान पढ़ते हैं, फरमाया इज़ा दखल रमज़ान फ़ुतिहत अबवाबुस्समा व गुल्लिकत अबवाबु जहन्नम व सुलसिलतिश शयातीन। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते जब रमज़ान का महीना आ जाता है, फ़ुतिहत अबवाबुस्समा, आसमान के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। और एक हदीस के अंदर आया अबवाबुर रहमा, रहमत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। और एक हदीस के अंदर ये जुमले आए हैं अबवाबुल जन्ना, जन्नत के दरवाज़ों को खोल दिया जाता है। वसुलसिलतिश शयातीन, और शैतानों को जगड़ दिया जाता है, यानी संगल मार दिए जाते हैं। फरमाया आसमान के दरवाज़े भी खुल गए, जन्नत के दरवाज़े खुल गए, रहमत के दरवाज़े खुल गए, वगुल्लिकत अबवाबु जहन्नम, जहन्नम के दरवाज़े बंद, वसुलसिलतिश शयातीन, और शैतानों को जगड़ दिया जाता है। ये रमज़ान का महीना, इसके अंदर अल्लाह पाक ने एक नेकी के बदले 700 यानी कि अल्लाह पाक की रहमत, अपनी रहमत के मुताबिक इतना अल्लाह पाक नेकी अता करते हैं। और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि देखें, बंदा कोई भी नेकी करता है, रास्ते से पत्थर हटाता है तो फरिश्ते अजर लिखते हैं। अगर कोई भी नेकी करता है, गरीब के सर के ऊपर, यतीम के सर के ऊपर हाथ रख देते हैं तो नेकी फरिश्ते लिखते हैं। गरीब को
آپ مدد کر دیتے ہیں نیکیاں فرشتہ لکھتا ہے، مسکین کا آپ خیال رکھتے ہیں تو نیکیاں فرشتہ لکھتا ہے، حتیٰ کہ آپ نماز پڑھتے ہو نیکیاں فرشتہ لکھتا ہے۔ تو ایسے ہی اللہ پاک فرماتے ہیں جب روزے دار کی باری آتی ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں یہ جو روزہ ہے یہ میرے لیے رکھا گیا ہے اور اس کا اجر بھی میں ہی دوں گا، الصوم لی وانا اجزی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں روزہ میرے لیے اور اجر بھی میں ہی دوں گا۔ اب اللہ پاک یعنی کہ پتہ یہ چلتا ہے کہ فرشتے روزے دار کا اجر لکھ ہی نہیں سکتے، فرشتوں کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ روزے دار کا اجر لکھ سکے۔ تو ناظرین یقین مانیے اس سے بڑی خوش نصیبی کیا بات ہو سکتی ہے کہ اللہ پاک ہندوؤں کو بھی ہدایت دے رہا ہے، اور یہ بھی میری دعا ہے کہ جتنے بھی ہیں ایسے مشرک اور ہندو، اللہ پاک جتنے بھی اور بھی ہیں اللہ پاک ان کو بھی ہدایت نصیب فرما دے اور دین اسلام کی طرف اللہ پاک ان کو بھی لے آئے۔ تو ناظرین دعا کریے گا اللہ پاک ہمیں زندہ رکھے تو اسلام پہ، موت دے تو ایمان پہ۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔